Good morning, sweet children. How are you? I hope you all are healthy and happy. You are doing very good work. Keep it up. Students, today we are going to complete lesson 21. Previously हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है. आपने सॉलिड्स, लिक्विड, गैस और इसके साथ सॉल्यूशन क्या होता है, मिसिबल, इमिसिबल लिक्विड्स किसे कहते हैं, ये सभी टर्म्स को अच्छे से एक्टिविटीज़ के साथ समझा है. तो अब इसमें क्या क्या काम है पेंडिंग? यस, आपने इसका एनिमेशन नहीं देखा ना, तो आज आप एनिमेशन एंजॉय करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट करेंगे और आपको डू यू नो भी समझना है. सो बी रेडी. ओपन पेज 133. Do you know that is given on page 132? Liquefied petroleum gas. ये बच्चों एक गैस है जो किसमें भर के आती है, एलपीजी जिसे हम कहते हैं सिलेंडर में, जो हमारे घर में यूज होता है किचन में. आपकी मम्मा खाना बनाती है ना, तो उसके लिए जो सिलेंडर यूज होता है वो एलपीजी सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फिल की जाती है और ये गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है. वैसे ये गैस है पर वो लिक्विड फॉर्म में किस लिए होती है, क्योंकि उसको सिलेंडर के अंदर फिल करने के लिए हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस किया जाता है, उसको दबाकर भरा जाता है. नाउ लेट अस समराइज द टॉपिक. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. कि कोई भी वो चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है और जिसमें वजन होता है, वेट होता है, वो क्या है, मैटर है. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. मैटर किससे बना हुआ है, एटम्स को जोड़ के. जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी चीज को बनाने का, वो क्या है, एटम्स है. एंड एटम्स कंबाइन टुगेदर. और जब एटम्स को हम इकट्ठा जोड़ देते हैं टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल्स. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. कोई भी चीज है धरती पे वो 3 स्टेट्स में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेट अस एंजॉय द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर. 1. Matter and materials. Matter. We see many objects around us. These objects differ from one another in shape, size, color and texture. Notice their colors, shapes, sizes and textures. Do you find them the same? Now take out all the things kept in your school bag. Look inside the bag. The space inside the bag was occupied by the things you have taken out. Can you fit your science book inside your pencil box? If you put your sharpener alone in your bag, will it occupy all the space in your bag? You observed that all objects of your school bag occupy different amounts of space. The amount of space occupied by an object is called its volume. All objects occupy space and have volume. Also, some objects are heavy while some others are lightweight. But all objects have weight. Anything that takes up space and has weight is called matter. Everything around us is made up of matter. You and your friends are made up of matter. Your toys, games and food all are made up of matter. Matter is made of tiny particles called atoms. States of matter. Matter exists in different forms. There are 3 states of matter called solid, liquid and gas. Solid. In solid state, matter has a definite shape and it occupies a definite amount of space. In this state, the molecules of matter lie very close to each other.
Spoon, book, pencil, blackboard, table, etc. are some solids. Liquid. In liquid state, the matter does not have a definite shape, but it occupies a definite amount of space. In this state, the molecules do not lie very close to each other. They have more space between them as compared to the molecules of solids. These molecules are able to slide past each other. Water, milk, soft drinks, fruit juices, etc. are some liquids. Gas. In gaseous state, the matter neither has a definite shape nor does it occupy a definite amount of space. In this state, molecules lie far apart to each other. The molecules of a gas are far apart than in a solid or liquid. The molecules of a gas can easily spread through any space available to them. Air is a mixture of gases. The air in gaseous state is filled in balloons, footballs, and tires of cars, bicycles, buses, etc. Change in the state of matter. Many substances can exist in more than one state. Water is normally a liquid, but you get solid ice on cooling the water in a freezer. Also, on heating water, you can convert it into steam. At 0 degrees Celsius, the liquid water changes into solid ice. This process is called freezing. On the reverse, ice can be changed into water on heating. This process is called melting. When water is boiled till 100 degrees Celsius, it changes into water vapor, which is a gaseous state. This process is called evaporation. When water vapor changes back to water on cooling, it is called condensation. Solution. A mixture of a solid or a gas in a liquid is called a solution. Solids dissolve in liquids. Sugar dissolves in water after stirring. Here, sugar is said to be soluble in water. When a solid dissolves in a liquid, it forms a solution. In this case, sugar is a solute and water is a solvent. The sugar is a solid and water is a liquid. When a solid dissolves in a liquid to form a solution, the solution is called solid in liquid solution. Some solids do not dissolve in water. These solids are called insoluble solids. Liquids dissolve in liquids. The milk is completely soluble in water. Here, both water and milk are liquids. Hence, their solution is called liquid in liquid solution. Liquids that mix well with each other are called miscible liquids. Oil does not mix well in water. It forms a distinct layer on top of water surface. Liquids which do not mix well with each other are called immiscible liquids. Gases dissolve in liquids. The bubbles of the gas start coming out of the soda. These are bubbles of a gas called carbon dioxide. This shows that soda is a liquid with a gas dissolved in it. Hence, it is an example of gas and liquid solution. Be ready for exercise. Question A. Tick the correct answer. The state of matter which takes the shape of the container is. वो state of matter कौन सा है जो कंटेनर की शेप ले लेता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और लिक्विड एंड गैस. तो सोचोगे और टिक करोगे. द स्टेट ऑफ मैटर दैट डज नॉट फ्लो फ्रीली. इसमें से बड़े आसानी से कहीं पे भी जो नहीं जा सकता वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और सॉल्यूशन. नंबर 3. द सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड. वो सॉलिड कौन सा है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है? उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन या फिर फ्लूइड. नंबर 4. इन चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट इज द. तो चॉकलेट मिल्क में जो चॉकलेट हम डालते हैं वो क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है या फिर फ्लूइड है. तो बच्चों आपने ये
प्रैक्टिकल के थ्रू बहुत अच्छे से समझे हुए हैं टॉपिक्स, तो आप सोचोगे और देखोगे किस बॉक्स के अंदर चारों स्टेटमेंट में से टिक करना है। बी, क्वेश्चन बी कौन सा है, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स वेल इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, कि वो लिक्विड्स जो वाटर में मिक्स नहीं होते वो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। तो याद करो मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसमें फिल करोगे क्या आएगा, फॉल्स है या ट्रू है। चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, कि किसी भी लिक्विड का चेंज होना वाटर वेपर में गर्म करने पर क्या वो टर्म मेल्टिंग होती है। चेंजिंग बैक ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कि वाटर वेपर्स जब चेंज हो जाते हैं दोबारा से लिक्विड में कूलिंग पर तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो सोचो, गैसेस हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, कि गैसेस का क्या फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। सोचना है बच्चों, एक्टिविटीज को ध्यान से रिमाइंड करके फिर आपको इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है। क्वेश्चन सी, fill in the blanks. Number 1, all matter takes up some dash and has dash, कि matter takes up क्या उसका होता है और क्या है उसकी शेप होती है और उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है, कि कोई भी चीज़ जो धरती पे है शेप भी होगी उसकी और वो जगह को ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम होगा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, मैटर के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। एटम्स जॉइन, जब हम एटम्स को जोड़ देते हैं टुगेदर इकट्ठे, टू फॉर्म अ, तो उससे क्या मिलता है, क्या बनता है बताओ। यस, मॉलिक्यूल। नंबर 4, मैटर एग्जिस्ट एज, तो जो मैटर है वो कितनी स्टेट्स में होता है आपको अच्छे से पता है, आपका स्टार्टिंग है ये चैप्टर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ डी पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है बताओ जरा, सोचो, आपने डेफिनेशन अच्छे से समझी है। यस, anything that takes up space and has weight is called matter, कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें वेट होता है उसे मैटर कहते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। यस, लिक्विड्स दैट mix well with each other are called miscible liquids, और इसके एग्जाम्पल क्या लिए थे हमने एक्टिविटी में, वाटर एंड मिल्क। एंड immiscible liquids, the liquids which do not mix well with each other are called immiscible liquids, कि जो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होते वो इमिसिबल होते हैं। जैसे किसका एग्जाम्पल लिया था हमने एक्टिविटी में, क्या मटेरियल लिया था, ऑयल। ऑयल को जब हमने वाटर में मिक्स किया था तो वो मिक्स नहीं हो रहा था। क्वेश्चन 3, हाउ आर यू एबल टू स्मेल एन अगरबत्ती इवन इफ इट इज लाइटेड इन द अदर कॉर्नर ऑफ अ रूम, कि अगर आप अगरबत्ती को एक कॉर्नर में अपने रूम के लगाते हो फिर भी इसकी स्मेल आपको बहुत दूर से आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो आपने ये भी एक्टिविटी देखी थी वीडियो में, क्यों हो रहा था ऐसे बताओ बच्चों। जो अगरबत्ती का स्मोक क्या बन रहा था, स्मोक जो धुआं निकल रहा था वो पूरे रूम में इजिली क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था, और जो मॉलिक्यूल से वो वेरी लूजली पैक्ड थे,
दैट्स वाई वी कैन एबल टू स्मेल एंड अगरबत्ती इवन इफ इट इज लाइटेड इन द अदर कॉर्नर ऑफ अ रूम। क्वेश्चन 4, डिफाइन इवेपोरेशन एंड, और इसके अपोजिट, इवेपोरेशन के अपोजिट कौन सी टर्म है, याद करो, यस, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या है बच्चों, बताइए, ये भी आपने एक्टिविटी में देखा था। इवेपोरेशन क्या होता है, बताइए, यस, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या है, चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर अगेन इनटू वाटर ऑन कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे होता है, हीटिंग से, और कंडेंसेशन कैसे होता है, कूलिंग से। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी आपने समझी है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड, कि किसी सॉलिड या गैस को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन 6, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो बच्चों आपको सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स के डायग्राम बनाने हैं अपनी नोटबुक में। इस तरह से बनाओगे, सबसे ऊपर आप हेडिंग डालोगे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या है, स्पेस है, बीच में थोड़ी दूरी पर है एक दूसरे से। एंड गैसेस के मॉलिक्यूल्स देखो कितने दूर दूर फैले हुए हैं। तो ये डायग्राम देखो आपके बच्चों बुक में भी दिए हुए हैं, पेज 129 एंड पेज 130 पर। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, और चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ वीडियो में बनाए हुए हैं। ई क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस। अब देखो नंबर 1 में शुगर, सॉल्ट, चॉक, वाटर। इसमें ऑड वन क्या है, ऑड वन आउट क्या है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है। शुगर, सॉल्ट एंड चॉक क्या है, सॉलिड्स हैं। नंबर 2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आइस। इसमें ऑड वन आउट क्या है, आइस, बिकॉज आइस क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोज, क्लोरीन तीनों क्या है, गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। पेट्रोल, बटर, ऑयल, मिल्क। पेट्रोल, ऑयल और मिल्क क्या है, लिक्विड्स, स्टेट ऑफ मैटर हैं, बट बटर क्या है, सॉलिड है। पेंसिल, मिल्क, कॉमन सॉल्ट, शुगर। यहाँ पे मिल्क क्या है, लिक्विड फॉर्म है, और पेंसिल, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर क्या है, सॉलिड स्टेट्स हैं। अब F पर आओ, गेस माई नेम। अब आपको इनका नाम बताना है। आई ऑक्यूपाई स्पेस, कि मैं स्पेस को ऑक्यूपाई करता हूँ, एंड हैव वेट, और मेरे अंदर क्या होता है, वेट होता है। आई कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, मैं तीनों स्टेट में रहता हूँ, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड में भी एंड गैसियस फॉर्म में भी। माई नेम इज, तो मेरा नाम बताओ। तो बच्चों बताओ, गेस करो, यस, वो कौन सा है, एक्टिविटी में हमने अच्छे से किया है, दैट इज वाटर, वो वाटर है। नंबर 2, आई एम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैं मैटर की, किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट होता हूँ, जिससे जोड़ के कोई भी चीज बनती है। माई नेम इज, तो मेरा क्या नाम है, एटम, ATOM, एटम। एटम होते हैं सबसे छोटे, उसको जोड़ो तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करो तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। नंबर 3, पीपल लव ड्रिंकिंग मी, कि लोग मुझे पीना पसंद करते हैं। आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन मी, और मेरे अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है। माई नेम इज, तो मेरा नाम क्या है, सोचो बच्चों,
इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लोग पीते हैं इसको। वो क्या है? ड्रिंकिंग सोडा। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ड्रिंकिंग सोडा। अब जी पार्ट पे देखो, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट राइज, तो जो वाटर का वॉल्यूम है, वाटर की कैपेसिटी है, वो नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि बच्चों क्या है, शुगर सॉलिड है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस होता है उसके अंदर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो वाटर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता। अब एच पार्ट पे देखो, थिंक एंड आंसर। ए बलून इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग क्लब सोडा, कि एक बैलून को अगर हम क्लब सोडा के माउथ पे अटैच कर देते हैं और उसके बाद द बॉटल इज देन शेकन जेंटली, बॉटल को अगर हम धीरे धीरे हिलाते हैं तो कुछ समय के लिए फिर इसको छोड़ दो हिलाने के बाद, तो आप देखोगे द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड, तो वो बैलून फूलना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि क्लब सोडा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे किसमें ऐड होनी शुरू हो जाती है? बताइए, बैलून के अंदर फिल हो जाती है, जिसके कारण बैलून इन्फ्लेट हो जाता है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much for watching this video.